Bismillahirrahmanirrahim. So we are studying astigmatism optics in last few lectures, and the story started with a spherical surface in which all the meridians are of the same power, and if the surface has meridional power differs, for example, 90 degrees power is different from a 180 degrees, the surface is known as a spherocylindrical surface, and it gives rise to two different foci. And we understand that the cylinders act on the rays perpendicular to their axis, and they form a line focus parallel to their axis. So two lines are formed instead of a point focus, depending upon the power of the cylinder in question. And those images, that ray diagram crosses each other in a manner that ovals and circles are there between those two focal lines. And at a point where the distance between these two crossing lines is minimal, there is a round smallest circle, which is known as circle of least confusion. And these circles and the lines front and behind is known as conoid of Strum. And we studied that we can find out and neutralize astigmatism by retinoscopic method, in which we use spherical power, spherical equivalent power, spherical power to bring get one line focused on the retina, and then the other line is either pushed back or pulled back by adding the cylinder. This is retinoscopic correction. And the other way is Jackson cross cylinder, which is based on conoid of Strum, in which we put the spherical equivalent of the equation in front of the patient's eye to bring the circle of least confusion on the retina. And then by flipping of the Jackson cross cylinder, which is composed of plus and minus cylinders in opposite axis, and spherical equivalent of the cross is always 0. By flipping, we find out which way the image gets better. Where the image gets better, the circle gets smaller till a point is reached where both lines collapse into a point focus. So this is Jackson cross cylinder method. And lastly, we discussed the types, which we revised just now, that we transpose the equation and then see what are the signs of the spheres in both the equations. Transposition, we studied, is performed by adding the sum of the two given equations and then changing the sign of the cylinder, and the axis is found by either adding 90 or subtracting 90 from the given degrees of the cylinder. And then we see if what is the combination. If it is plano with minus, it is simple myopic astigmatism, and if the both are minus, it's compound myopic astigmatism, and if it's minus and plus, then it's mixed myopic astigmatism. So we study the power cross today. Let's see what it is. The power cross is a concise and convenient format for representing astigmatic error and its correction. So this is power cross is what you study in your retinoscopy, and it's that's what you need in your intermediate module. The examiner expects you to draw it first
the gross power cross, and then the net power cross, and then the equation which we are used to see in a torrefractometer. And it needs a very good and crisp understanding so that you don't mix the axis and the power. So it's always a source of confusion for training ophthalmologist. So Dr. Stephen says that trust me, if you understand it, power cross is your friend. As now Jackson cross cylinder appears our friend. A cylinder can be represented on a power cross. Note the notation conventions. Power is recorded on the meridian of the power, which is 90 degrees away from the axis of the power. Where the cylinder acts, that's where you record the power. In this way, a power cross provides an efficient summary of the clinically relevant refractive properties of a cylinder. ये सिलेंडर 90 डिग्रीज पे लगा हुआ है +2 का, तो कहाँ एक्ट कर रहा है? 180 पे. तो आप पावर क्रॉस में इसकी पावर कहाँ लिखेंगे? 180 पे. यही है, इसको हमने कंफ्यूज नहीं होना. A cylinder is placed at 180 degrees, the power is +3. तो it is acting at 90 degrees और हम लिखते कैसे हैं? +3 at 180 degrees. लिखते तो हम उसी तरह हैं जिधर उसका एक्सेस होता है, वहां उसकी पावर नहीं होती. What we need to understand is कि जिधर सिलेंडर का एक्सेस नजर आ रहा है उससे 90 डिग्रीज अवे एक्ट करेगा. Every cylinder will act 90 degrees away from the marked axis. If we place the +3 cylinder at 135 degrees, it will act at 45. It will be actually +3 at 45. तो लिखेंगे तो आप उधर जहां पे प्लेस कर रहे हैं, लेकिन it will act 90 degrees away. यही मतलब है इस स्लाइड का, और कोई मतलब भी है? वही बात है, जहां पे लगा हुआ है एक्चुअल पावर उससे 90 डिग्रीज अवे है. हमें ये तो पता ही है कि वो अंडरस्टैंड के पावर के पैरेलल उसकी जो एक्सेस के पैरेलल रेज है वो अनडिविएटेड चली जाती है. इज इट क्लियर? +2 at 90 डिग्रीज, तो सिंपल उस पे 90 पे तो डॉटेड लाइन लगाई है, तो उसकी पावर जहां हो रही है वहां सॉलिड लाइन लगा दी है, तो वहां पे एक्ट कर रहा वो. तो इफ इन द पावर क्रॉस अगर तो एक ही सिलेंडर है तो फिर तो वो प्लेनो होगा ना, एक तरफ, तो एक तरफ 90 होगा, एक तरफ पावर होगी. तो कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है कि दोनों पे अगर सिलेंडर डिफरेंट पावर के होंगे तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्रीज अवे कर रहे होंगे, लेकिन फिर उस क्रॉस के दोनों तरफ पावर लिखनी पड़ेगी. देन वी हैव टू लेबल द क्रॉस ऑन बोथ द एक्सिस. If it is just one cylinder, then it will be plano on one side. If we have a combination, a lens is there, which is actually composed of +2 at 90 degrees and +3 at 180 degrees. So +2 at 90 degrees is acting at 180 degrees and +3 is acting at 90 degrees. तो पावर क्रॉस ऑपोजिट लिख देंगे, क्योंकि वो +2 at 90 था, it is acting as +2 at 90, but the power is at 180. And if it is +3 at 180 degrees, it's acting at 90 degrees. तो जब इसको आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी कि सिलेंडर तो इस तरह लगे हुए हैं, लेकिन आप लिख कैसे रहे हैं? 90 और 80 करके. तो आप दोनों पे +3 at 180 +2 at 90
but you understand that they are acting at 90 degrees away. तो जब आप सिंगल क्रॉस बनाते हैं तो आपने उसकी रिफ्रैक्शन को, सिलेंडर्स को, दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब ये दोनों जब आप लगा देंगे उसके आगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा फिर कोनॉइड ऑफ स्टर्म। कंफ्यूजन कैसे होता है? द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज टू रीड द पावर क्रॉस लाइक अ स्पेक्टिकल contact lens prescription. In the present example, the power cross could be misinterpreted as representing the spectacle correction +3 +2 at 90 or perhaps +2 with +3 at 90. ऐसे नहीं है. That's where the difference comes. तो ये अब हम देखते हैं कि जब पावर क्रॉस को की अहमियत कैसे आती है। ये देखें कि ये जो +3 +2 90 पे है अगर, तो 2 का हाफ कितना है? 1। तो इसकी नेट क्या आई? इस इक्वेशन की नेट पावर क्या आई? +4। एंड व्हाट्स द नेट पावर ऑफ दिस इक्वेशन? +3.5। तो कि एक तो एक हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उनका स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकाल लें। अगर आपको ट्रांसपोजिशन आपने किया और आपको कोई डाउट हो रहा है किसी वजह से, तो ट्रांसपोज्ड इक्वेशन का स्फेरिकल इक्विवेलेंट विल बी द सेम, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक आपने किया, वही बात है। तो उनकी जो ट्रांसपोजिशन है वो एक दूसरे की उस तरह प्लस में होनी नहीं है। ट्रांसपोजिशन में तो सिलेंडर ने साइन चेंज हो जाना है, तो ये इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकते एक दूसरे के। तो इसका मतलब है हमसे कुछ लिखने में एरर हुई है, पावर क्रॉस को समझने में हमसे कुछ गलती हुई है। तो यही हमने समझना है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पावर क्रॉस एंड अ प्रिस्क्रिप्शन? अ प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन इन अ स्फीरो-सिलिंड्रिकल फॉर्म। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले स्फीयर लिखते हैं फिर सिलेंडर लिखते हैं। Whereas a power cross is written in cylinder form only. तो इसलिए एक हो ही नहीं सकते। पावर क्रॉस में you are writing the actual axis and power of the cylinder with the understanding that it will act 90 degrees away. Whereas in prescription, the first notation is of a spherical length and second one is, so power cross cannot be simply expressed in a prescription form. Then we will make a mistake. If you break down the word spherocylindrical, you can see that a prescription is composed of a sphere power, the first number, and a cylinder power, the second number, and its axis. Is it clear to everybody? In contrast, a power cross simply states the power and axis of two cylinders. No spherical power is implied. So they cannot be same. This states the entire length has a base power of +3 and +2 of cylindric power with axis 90 degrees has been added. Note that this means that length has a total power of +5 diopters at axis 90, the base +3 plus the cylindrical +2. जहां पे सिलेंडर लगाएंगे वहां पावर वो ऐड हो गई, दूसरे पे तो वो +3 है, +3 इट्स ऑल अराउंड, और जहां आपने सिलेंडर लगाया है वहां आपने उसको उतनी पावर और दे दी है, तो वो एक्ट कर रहा है 90 डिग्री अवे। तो इसका मतलब है कि हमें असल में 180 पे एक्स्ट्रा पावर चाहिए थी। वी विल कम टू दैट। अ प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन इन अ स्फीरो-सिलिंड्रिकल फॉर्म। ये याद रखने की बात है कि पावर क्रॉस इज रिटन in the cylinder form only with actual power and axis of the cylinders, whereas a spherocylindrical prescription is written in spherocylindrical form where the sphere will provide the power to all the meridians and the cylinder will provide power only to the meridian mentioned.
The entire length has a base power of, अब जो दूसरी इक्वेशन है उसमें the entire length has a base power of +2 with an additional power of +3 at 180 has been added. The length has a total power of +5 at axis with +2 base and the cylinder +3. Clear है ये? You can see that neither of these is a proper interpretation of the power cross below. तो इस तरह से हम जब इस इक्वेशन को लिख रहे हैं तो ये जो नीचे वाला पावर क्रॉस है उसमें तो 5 का कोई नहीं है सिलेंडर, वहां तो +5 आ रहा है ना 180 पे, तो देयर इज नो +5 हियर। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हम इस इक्वेशन की कर सकते हैं ऑप्टिकली, ये इस पावर क्रॉस के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन लिखी नहीं जाती सिलेंडर फॉर्म में, ये लिखी ही स्फीरो सिलेंडर फॉर्म में जाती है। तो ये इस तरह से उसमें ट्रांसलेट पावर क्रॉस में नहीं हो सकती जब तक हम इस इक्वेशन को ब्रेक ना कर लें इनटू सिलेंड्रिकल फॉर्म। In contrast, this simply stating that the length has power of +2 at axis 90 and +3 at axis 180. This is true even if the power cross format is being used to describe a spherocylindrical length. तो describe तो दोनों एक चीज को ही कर रहे हैं, जब दोनों में फर्क है तो वो spherocylindrical length। सिर्फ समझने की बात यही है कि जब सिलेंडर फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उसको प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना कि गलती ना हो, है तो वो स्फीरोसिलिंड्रिकल लेंथ ही। तो उसमें हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, एक को हम कहते हैं स्फीयर बना लो, जो आप रेटिनोस्कोपी में प्रैक्टिकल टिप जब पढ़ेंगे, क्रॉस बनाने के बाद कहते हैं कि जी ये 2 बनाए हैं ना, इसमें से एक को स्फीयर बना लो, तो आपने +2 को स्फीयर बना लिया, तो उसका नतीजा क्या निकला कि +2 is provided to 180 and 90 both। तो जो लैकिंग रह गया वो कितना रह गया, अब इन दोनों का फर्क वो कितना है, +1। तो ये प्रैक्टिकल टिप है जो हम यूज करते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम उसको स्फीरोसिलिंड्रिकल फॉर्म में लाएंगे तो एक को हम स्फीयर बनाएंगे, जिस एक्सिस को भी, जिस फिगर को भी हम स्फीयर बनाएंगे वो 180 पे भी उतनी पावर दे देगी, 90 पे भी उतनी पावर दे देगी। तो 90 पे हमें दोनों का फर्क साफ नजर आ रहा है कि 90 पे हमें +1 एक्स्ट्रा चाहिए। 90 पे +1 एक्स्ट्रा लाएंगे तो किसको मिलेगा, वो 90 डिग्रीज अवे को मिल जाएगा ना। तो उसको उसमें से माइनस करते हैं। दूसरी चीज आप पावर क्रॉस में जो हम अभी समझेंगे कि उसको सिंबल कैसे कॉन्फर करना है, कि ये फैसला कैसे करना है कि इस इक्वेशन में इस पावर क्रॉस को कन्वर्ट करने में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, जो कि आप अंडरस्टैंड करते हैं अभी तक की डिस्कशन में, कि सिलेंडर हम माइनस भी यूज कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। तो अब जब हम इसको कोलैप्स करेंगे इनटू अ स्फीरोसिलिंड्रिकल इक्वेशन, तो अब देखना ये है कि हम जो दोनों का डिफरेंस तो हमने मान लिया कि जी 1 है, इन एनी केस +3 और +2 में 1 का फर्क है। अब उस 1 को 1 को whether you convert it a minus sign or a plus sign and how you convert it the axis, simply pick one of the cylinders to serve as the base lens or a spherical component, then adjust the power of the cylinder as needed। यहां तक तो हम क्लियर हो गए हैं कि इन दोनों में से हमने +2 को, आमतौर पर हम जो छोटी पावर होती है उसको ले लेते होते हैं, अगर दोनों एक ही हों तो फिर और आसान होता है। तो हमने +2 को स्फीयर ले लिया। द पावर नीडेड एट एक्सिस 90 is now in place. What about 180?
ये इसलिए कह रहा है कि 180 डेफिशिएंट है, तो +2 तो दे दिया, तो ये तो हैप्पी हो गया। इसने एक्ट कहाँ करना था? 90 पे। तो +2 दिया तो असल में 90 ने कहा थैंक यू, तो पावर मिली तो उसको ना। तो 180 ने कहा कि जी ठीक है, आपने किया, थोड़ा सा फायदा तो हुआ है, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन तो छोटा हुआ है, लेकिन मेरा मसला तो हल नहीं हुआ अभी। तो उसके लिए आप कहाँ लगाएंगे तो 180 का मसला हल होगा? 90 पे। और कितना लगाएंगे? +1। बस यही आप समझ लेनी है बात कि +2 दिया, वी नीड एन एडिशनल +1 at 180 to produce a +3 diopter power needed at this axis. यहां देंगे तो इसको मिल जाएगी, और वहां लगाएंगे तो फिर माइनस लगाएंगे, फिर -1 हो जाएगा। Thus, if using a +2 diopter base sphere length, the spherocylindrical prescription equivalent to our power cross is +2, डिफरेंस कितना आया? +1। यानी जो आपने स्फीयर बनाया है उसको माइनस करना है दूसरे क्रॉस के कंपोनेंट में से, तो वो +1 ही आएगा जवाब। क्योंकि जब एल्जेब्रिक, ये इसको कहते हैं एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन। एल्जेब्रिक सम में और सब्ट्रैक्शन में फर्क होता है, ये भी बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता। ये ऑप्टिक्स जो है ना, ये आपका बड़ा बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स को बहुत रिवाइज करवाती है। एल्जेब्रिक सम में और एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन में आम जो प्लस और माइनस, जिसको हम जमा तफरीक कहते थे, जो बच्चे पहले इब्तदाई क्लासेस में पढ़ते थे और फिर जब वो 9th 10th में आके अलजेब्रा पढ़ते थे, तो देयर वाज अ डिफरेंस कि आप 2 + 2 = 4, तो ये तो हो गया सम। 2 + -2 = 0, ये सम है। लेकिन अलजेब्रिक सम तो ऐसे ही है जैसे आम होता है कि उसकी अलामत के मुताबिक आप उनको एक दूसरे में से प्लस माइनस जो भी है कर दें। अलजेब्रिक सम +2 + 3 का कितना है? +2 + 3 का +5 है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि +3 को +2 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो अलजेब्रा में हम कहते थे कि जो नीचे वाली जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको ब्रैकेट में रखेंगे और उसके पीछे माइनस लगाएंगे और उसका सिंबल चेंज कर देंगे। उसको उर्दू में कहते हैं अलामत बदलना, कि +2 माइनस लिख के ब्रैकेट में +3 लिखेंगे और अगले स्टेप में वो माइनस उसके प्लस को जो बाहर माइनस करना था ना, माइनस में बदल देगा, तो आंसर क्या आएगा? -1। तो इसलिए ये भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ट्रांसपोजिशन में यू गेट द एल्जेब्रिक सम, whereas in power cross you subtract it। algebraic subtraction है ये। अभी आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। जब तक आप एल्जेब्रिकली उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आपका सिलेंडर माइनस में कैसे आएगा? वो तो आसान हो गया कि +2 स्फीयर लगाया और दोनों का डिफरेंस +1 आ गया, तो आंसर आसान हो गया। लेकिन अगर आपने +3 स्फीयर लगा लिया, we could use +3 cylinder to create our base sphere. Note that this provides one diopter of plus more than it is needed at axis 90. To offset this axis plus, we need -1 at 90. Thus, the spherocylindrical equivalent will be +3 -1 at 90.
समझ आ गई है? अब ये देखें इधर, इनका स्फेरिकल इक्विवेलेंट एक ही है। +3 में से -1 का हाफ निकाला तो +2.5 रह गया, और +2 में +1 का हाफ जमा होना है तो अगेन +2.5 आ गया। So spherical equivalent is an algebraic sum. Sphere will be found by algebraic sum of the sphere and cylinder without changing their signs. Whereas in power cross, you remember this as a background knowledge, but practically you will be doing subtraction, कि जिसको आप स्फीयर बनाएंगे उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे में से और उसी एक्सिस पे लगा देंगे। अगर आप बगैर समझे भी करना चाहें तो उसका भी तरीका है कि अगर आपको ये सारी ऑप्टिक्स याद नहीं रहती और पावर क्रॉस याद नहीं रहता तो उसका भी सिंपल फार्मूला है कि जिसको सिंपल याद रखते हैं। बहरहाल लेट्स सी कि आगे कैसे बात चलती है। यहाँ तक क्लियर है? क्यों अब्दुल्ला, यू अंडरस्टैंड इट? अपने लफ्जों में कैसे बयान करोगे आप, ऊंची आवाज से? सर हम लोग जब भी सिलेंडर की 2 मेरिडियंस में पावर आ रही हो, अब उसको हम लोगों ने मतलब उनमें से किसी को भी स्फीयर बना सकते हैं आप, बना के बाकी जो पावर उसको रिमेनिंग रह जाएगी दूसरे मेरिडियन में, उसका हम सिलेंडर लगा, उसको हम देखेंगे लॉजिकली कि हमने उसको ज्यादा दे दी है तो फिर स्फीयर अगर हमने बड़े वाला ले लिया है तो हमने ज्यादा पावर दे दी है दूसरे मेरिडियन को, तो हमें माइनस का सिलेंडर यूज करना पड़ेगा। अगर हमने स्फीयर छोटा लिया है तो दूसरा और मांग रहा है तो हमें प्लस का सिलेंडर यूज करना पड़ेगा। सारी मतलब जो कर रहे हैं कैलकुलेशन इसलिए करने के 2 सिलेंडर्स आ रहे हैं डिफरेंट मेरिडियन, उसको एक करने के लिए ये जब आप रेटिनोस्कोपी करेंगे तो उसमें दोनों सिलेंडर्स को, दोनों एक्सिस को आप अलग अलग न्यूट्रलाइज करते हैं, और जिस एक्सिस को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं उसको लिख लेते हैं ऐसे लाइन लगा के, और फिर उसको स्ट्रीट को 90 डिग्री स्ट्रीट को घुमाते हैं और दूसरा एक्सिस न्यूट्रलाइज करते हैं तो वहां क्रॉस बनता है, तो वो पावर क्रॉस है। उसको हम सीख रहे हैं कि पावर क्रॉस आपकी स्फीरोसिलेंड्रिकल लेंथ में कैसे चेंज होता है, क्या फर्क है, और ट्रांसपोजिशन से इसका क्या फर्क है। और आपको ये एमसीक्यूज आएंगे कि उसने पावर क्रॉस कॉम्प्लेक्स सा दिया होगा और नीचे 3-4 ऑप्शंस लिखी होंगी कि इनमें से करेक्ट कौन सी है, या वो सिंपल इक्वेशन लिख देगा और कहेगा पावर क्रॉस बनाओ। ये जरूरी इसलिए है, ऑटोग्राफ के लिए ये जरूरी नहीं है, ये रेटिनोस्कोपी के लिए जरूरी है। और रेटिनोस्कोपी अभी तक इन प्रैक्टिस है कि आपने जब, जैसे आप कहते हैं ना, वो जो ब्लड प्रेशर का अपरेटस होता है मर्करी वाला, उसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। किसी भी ऑटोमेटेड कार्डियक मॉनिटर हो, कोई भी हो, जितने मर्जी अच्छे सेंसर वाला हो, आपने देखना है कि ये बीपी सही भी दे रहा है नहीं, तो क्या करेंगे? और स्फिग्मोमैनोमीटर से लेंगे। वो जो डायल वाला है वो भी एक्यूरेट नहीं है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। ऑक्सटाइट गोल्डमैन टोनोमीटर इज स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड। इसलिए आपको समझाया इतनी दफा है, लेकिन आपके लिए मुश्किल है कि 20 से ऊपर प्रेशर हो तो मेरे पास पेशेंट नहीं आना चाहिए जब तक उसका 80 नहीं लिया आप। मेक इट अ हैबिट। ये मुश्किल काम है, लेकिन दे मेक द डिफरेंस इन द एंड। तो इसलिए ना यहाँ रेटिनोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो वी विल गो टू आवर ओल्ड इज गोल्ड रेटिनोस्कोपिक क्रॉस एंड फाइंड आउट। और खासतौर पर पीडियाट्रिक रिफ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है रेटिनोस्कोपी को समझना, इसलिए हम सर्क पा रहे हैं। वरना ऑटोग्राफ आपको स्फीरोसिलेंड्रिकल इक्वेशन दे रहा है खुद ही अपनी एआई की मदद से। तो एआई जो है ना, ये जितना मतलब अब हैरान हो गए हैं लोग, ऐसे तो नहीं है। जब आपके हाथ में पहली दफा कैलकुलेटर आया तो इट वाज अ शेप ऑफ एआई, इट वाज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
जिससे वो कैलकुलेट कर रहा था। तो वो इक्वेशन, वो जो थीटे और वो जो वैल्यूज लॉग्स जिनमें आपको टाइम लगता था, वो इंस्टेंटली आपको कर देता था। तो इसलिए कोई इतनी ज्यादा हैरानकुन नहीं है चीज, वही रिफाइन होती जा रही है वक्त के साथ चीजें। तो एआई की शेप आई के इंस्ट्रूमेंट में कब से यूज हो रही है। ऑटोफ्रैक्टोमीटर छोटी सी चिप है जो ये सारा कुछ करके वर्जन्स को कैलकुलेट करती है, उसको डायोप्टर्स में कन्वर्ट करती है, डायोप्टर्स का क्रॉस बनाती है, क्रॉस को स्फीरो-सिलेंड्रिकल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करती है और प्रिंट आउट आपको दे देता है। तो वो छोटा सा उसमें कंप्यूटर ही है व्हिच इज डूइंग इट। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है पावर क्रॉस की कि इससे हमें रेटिनोस्कोपी को समझने में हेल्प मिलेगी। तो अब हम इस इक्वेशन में +3 का स्फीयर बनाएंगे, तो उसी के एक्सिस में -1 लगाएंगे तो +2 की डिजायर पूरी हो जाएगी। उसको वो +2 मिल जाएगा और इसको +3 मिल जाएगा। अगर +2 स्फीयर बनाएंगे तो जिसको स्फीयर बना रहे हैं उसी के एक्सिस में आपने डिफरेंस लगाना है दोनों का, और +1 लगाएंगे तो वो 90 को मिल जाएगा। स्फीयर से करते हैं ना, लेकिन उसको जब एंड में नोटेशन में लिखते हैं तो दोनों मेरिडियन को अलग अलग लिखते हैं ना। एक मेरिडियन +3 के स्फीयर से हुआ न्यूट्रलाइज, तो उसको आप लिखेंगे +3 at 180। अब आपने स्ट्रीक को घुमाया तो वो तो अगेंस्ट हो गई हुई है, तो आपने कहा अच्छा थोड़ी पावर कम करता हूँ, 2.5 किया, अभी भी विद आ रही है, मूवमेंट अगेंस्ट आ रही है, और जब +2 किया तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो आपने क्या नतीजा निकाला कि 90 जो है वो +2 से न्यूट्रलाइज हुआ है। तो इस तरह आपने फिर वो पावर क्रॉस में +3 at 180 लिखा और +2 at 90 लिखा। उससे इक्वेशन कैसे बनानी है, ये है तो कंफ्यूजन वाला पार्ट, लेकिन होपफुली द स्टोरी इज अनफोल्डिंग। नाउ द टू प्रेस्क्रिप्शंस आर इक्विवेलेंट। और ये हमेशा आपका एक वो, इसको हम उर्दू में क्या कहते होते थे कि जब आपने कोई अलजेब्रे में अक्सर होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उन सारे स्टेप्स को वापस फॉलो करें तो जो ओरिजिनल उसने क्वेश्चन में दी होती है इक्वेशन, इट शुड रीच देयर। डेरिवेशन करते हैं ना कोई, जो कहते थे कि डिराइव करो इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को, उसका जो सॉल्यूशन करते हैं उसका जो एंड वाला आंसर आता है उन्हीं स्टेप्स को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करें तो जो क्वेश्चन में दी होती है वो हो जानी चाहिए। इसको हम पड़ताल कहते थे। तो आप लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे भूल गया कि किसी चीज जो आपको वेरीफाई करना हो किसी आंसर को, तो उसको रिट्रो एनालिसिस करते हैं उसका। तो जो क्वेश्चन है वही उसका अल्टीमेट आंसर होना चाहिए, तो उससे वेरिफिकेशन हो जाती है। हाँ, प्रूफ तो कर लिया ना, वेरिफिकेशन ही है। तो ये तो आपको मैंने अभी बताया था कि 90 और 180 तो आसान है। तो अगर 45 है तो सिंपली 90 ऐड कर लें, और 135 है तो 90 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो क्रॉस दोबारा बन जाएगा। तो ये क्रॉस एक बना है जिसमें एक सिलेंडर 135 पे है और एक 45 पे है, और +2 at 135 लगा हुआ है और +3 at 45 लगा हुआ है। Let's make more of a cookbook approach to the conversion of a power cross to a spherocylindrical correction. Here is how to convert a power cross into a spherocylindrical prescription in 4 easy steps. करें डॉक्टर समरा? ये पावर क्रॉस बना हुआ है। +3 को स्क्वायर में लिखना है। आप पहले मुश्किल काम करना चाहती हैं? मैंने बताया आसान काम क्या है, छोटे को ले लें तो वो प्लस में आ जाएगा, तो जब आपने बड़े को लेना तो फिर सिलेंडर माइनस में आएगा। ठीक है, +3 ले लें, +3 आपने स्फीयर ले लिया, फिर
1 हाँ जी, दैट्स राइट। -1 में होगा 135। +3 तो हमने मान लिया, अब एक्सिस का सिर्फ झगड़ा है। ये देखो उसने वही काम किया जो मैं आपको कह रहा था, जिसको आपने, ये वैसे चाचा स्टीफन जो है ना, ये हेल्पफुल बड़ा है, ये वो सारे मेथड यूज कर रहे हैं। He first explains to you the whole optics, the logic behind it, और अब वो मेथड भी आ गया जो मैं आपको सिंपल बता रहा था, सबट्रैक्शन वाला। What he does is कि अगर आपने +3 बनाया है तो +3 को सब्ट्रैक्ट करना है +2 में से, और वही काम किया जो मैंने आपको बेसिक अलजेब्रा बताया था कि देखें कैसे लिखा है, +2 माइनस ब्रैकेट +3। तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या होगा कि माइनस विल चेंज द साइन ऑफ +3, ये -3 हो जाएगा, तो नेट क्या आएगा, -1। सब्ट्रैक्ट द सेम अमाउंट फ्रॉम द सेम आर्म ऑफ द सिलेंडर। तो जिसको आप स्फीयर बनाएंगे उसको दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना है, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन करनी है पावर क्रॉस में। तो ये तो बात अभी तक तो हम एग्रीड ही हैं। आपने एक्सेस क्या बोला था, लेट्स सी। कंबाइन द टू इनटू अ स्फीरिकल सिलेंड्रिकल करेक्शन। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये भी एक झटका मेथड आपको बताता हूं कि +3 स्फीयर बनाया ना, तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया +2 में से, तो जो एक्सिस है ना, जिसको स्फीयर बनाया ना, वही लगाना है। जस्ट रिमेंबर इट विदाउट गोइंग रीथिंकिंग एंड थिंकिंग। लॉजिक भी आ जाएगी अभी। अभी दूसरा करेंगे तो वो भी हो जाएगा। +3 आपने स्फीयर बनाया और +3 को +2 में से माइनस किया, -1 आ गया। यहां तक तो आसानी थी, बगैर गौर किए कि कहां पे क्या एक्ट कर रहा है। तो अब वो -1 लगाना कहाँ है, -1 हमेशा उसी एक्सिस में लगाना है जिसको आपने स्फीयर बनाया है। जस्ट इसको मेमोराइज करें, क्या बोला है मैंने, जिसको स्फीयर किया ना, तो उसी एक्सिस में से सिलेंडर को माइनस करना है, ऐड करना वो कर लिया। और उसका सिलेंडर लगाना कहाँ, किस एक्सिस में है, है। जिसको स्फीयर बनाया आपने। स्फीयर था नहीं, वो तो सिलेंडर था, हमने बनाया ना उसको। तो उस लिहाज से अब हम कहते हैं कि +3 स्फीयर, +3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया +2 में से, तो -1 आ गया। सो -1 इज द सिलेंडर एंड -1 विल बी प्लेस्ड जिसको हमने स्फीयर बनाया। किसको बनाया, +3 को। एक्सिस क्या है, 45। अब इसकी लॉजिक क्या है कि यहां पे जब आपने +3 बनाया तो +3 दोनों को मिल गया, 45 पे तो +3 मिल गया, तो 135 को भी +3 मिल गया। तो उसने कहा जी मुझे तो +2 चाहिए था। किसको +2 चाहिए था, 135, क्योंकि उसने एक्ट अवे करना था ना। तो इसलिए आपने -1 कहां लगाया, 45, तो वो उसको मिल गया 135 वाले को, तो वो भी +2 हो गया। उसको +2 चाहिए था ना, उसको +2 मिल गया। लेकिन याद रखने के लिए इसमें जाए बगैर कि 90 डिग्री वे एक्ट करना है तो क्या करना है, इसमें गलती का इम्कान है। सिंपल 1 पावर क्रॉस में किसी एक को आपने स्फीयर बना लिया और जिसको बनाया उसको सब्ट्रैक्ट करना है अदर में से और उसी एक्सिस पे लगा देना है। उसको छोड़ दें, इसी पे रहें।
पिछली तो ऐसी पिछली में असल में ना जो ये तो है ना 45 135 तो 90 180 में था उसमें, तो वहाँ हमने ऑपोजिट किया था कि अगर सफियर ले रही है तो जो सिलेंडर होगा उसकी देखना इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, ये कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजिंग है। हम अब आप करो इसको, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन है, इसमें किसको स्फीयर बनाना है आपने? +3 फॉर्म बनाते हैं सफियर, +3 स्फीयर बना लिया, तो सिलेंडर कैसे कैलकुलेट करना है? सर वो सब्ट्रैक्ट करके वो किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो अभी आपको फिर दोबारा इब्तिदा में जाना पड़ेगा। जिसको स्फीयर बना रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे में से। +3 को सब्ट्रैक्ट करना है +2 में से। जिसको स्फीयर बनाएंगे, आप करो बेटा। +3 स्फीयर बनाया, +3 को स्फीयर बनाएंगे सर, फिर वो उसको +2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -1 90 डिग्री एक्सिस -1 एट 90 डिग्री। एक्सिस वही होगा जो स्फीयर का, जिसको आप जिस सिलेंडर को स्फीयर बनाया उसी एक्सिस पे लगाना है। हाँ +90 पे लगना है। यू आर राइट। वहाँ पे सब डिफरेंट। अब बोलो इक्वेशन क्या बनी? +3 -1 एट 90 डिग्री इज फाइन, राइट। हम तो असूल दूसरा, आप दूसरा कर लें, इसको ना देखें, बताएं। +2 को स्फीयर बनाया, इस क्रॉस को देखना हम। फिर हमने जो है +3 में से +2 को माइनस करना है तो +1 आ +1 आ जाएगा, और फिर 180 पे आ जाएगा। 1 जो जिसको स्फीयर बनाया उस एक्सिस पे लगाया, दोनों आंसर ठीक आ गए। यहाँ पे भी हमने वही करना है, हमने अब क्रॉस को देखना कि +2 को स्फीयर बनाया तो उसको +3 में से सब्ट्रैक्ट किया, +1 आ गया, तो वो +2 वाले एक्सिस पे लगा दिया। जब +2 स्फीयर बनाएंगे तो +1 135 पे लगेगा, और जब +3 को स्फीयर बनाएंगे तो -1 +3 वाला एक्सिस यानी 45 पे लगेगा। तो जस्ट बगैर इस बात में जाए कि सिलेंडर 90 डिग्री द वे एक्ट करता है, यू कैन जस्ट डू इट बाय लाइक दिस। और अभी और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे स्टीफन साहब सिचुएशंस में। फॉर्मूला भी है ना, a b - a और एक्सिस ऑफ a, बस इस पे अगर हम हाँ। लेना b - a और एक्सिस ऑफ a सीधा फॉर्म, इसी को हम देखते हैं पावर क्रॉस से वो निकला है एक्सपेरिमेंट। b कौन सा है? कोई भी अगर हम रखते हैं a हमने स्क्वायर रखा, फिर b - a दूसरा जो होगा b में से a को स्क्वायर किया और एक्सिस ऑफ a, ठीक है, वो सीधा बात वही हुई हां तो दो वेरिएबल ना हाँ। कि जिसको भी आपने स्फीयर बनाया है, वो a है, तो b - a यानी उसको ही माइनस करना है ना, और ये अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन करनी है, सिंपल नहीं करनी, सम नहीं करना। वो गलती इस पे लगती है कि अचानक ट्रांसपोजिशन और वो दोनों गड़बड़ हो जाते हैं। गड़बड़ इसलिए हो जाते हैं कि आप ट्रांसपोजिशन में सम ले रहे हैं और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में उसकी अलामत भी बदल जाती है, तो इसलिए वो कभी वो बड़ा हो जाता है तो फिर माइनस में जवाब आ जाता है, और कभी प्लस में जवाब आ जाता है, और सेम हो जाती हैं, तो वो कर सब्ट्रैक्ट रहे हैं। -4 को सब्ट्रैक्ट करें +4 में से तो जवाब क्या आएगा? आप क्या करते हैं -4 में से +4 सब्ट्रैक्ट करें, -8 है, -8 आएगा। दैट्स द डिफरेंस, सम 0 होगा। -4 और +4 का सम 0 होगा। अगर सब्ट्रैक्शन की तो उसकी साइन चेंज होके वो असल में देखो वो ऐड हो गया। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर दिस। वो b - a बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको उलझन कहाँ होनी है? जब एक ही पेपर में 2-3 सवाल ट्रांसपोजिशन के होने हैं
और 2-3 सवाल पावर क्रॉस के होने हैं तो आपने वहां उलझ जाना है कि जी वो तो ठीक है बी माइनस ए तो मैंने कर लिया है, तो आप ट्रांसपोजिशन में गलती कर देंगे या उसमें कर देंगे। तो इसलिए रिमेंबर इट, ट्रांसपोजिशन इज एन अलजेब्रिक सम व्हिच इज जस्ट विदाउट चेंजिंग द साइंस, उसका नेट आ जाता है। जबकि सब्ट्रैक्शन में आप साइन चेंज करते हैं। -4 और -4 जब उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि आप नीचे वाले का साइन चेंज करके करेंगे। और वैसे भी वो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, कि बाहर माइनस है ब्रैकेट के और अंदर फिर माइनस की कोई फिगर है तो वो प्लस में बदल जाती हैं, जबकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस उसको माइनस कर देती है। ये हमने कर लिया डिस्कस, दोनों सूरतें इसकी कि +2 बनाएंगे तो फिर +2 वाले एक्सिस पे आएगा। आई की एरर जो है वो +1 एट 180 है और +5 एट 90 है। We have seen this slide before. It was a final result of Jackson cross refraction exercise. Let's use it as a test of our newfound power cross scale by checking the final result against that would be expected on the basis of the I error. +1 at 180 and +5 at 90. पावर क्रॉस क्या बनेगा? ये एरर लेंथ का कॉन्सेप्ट फिर कंफ्यूज करने के लिए आ गया ना आपको, तो उसको एग्जैक्टली उसी पावर से आपने न्यूट्रलाइज करना है। करेक्टिव लेंथ ये है, वो एरर लेंथ है। तो -1 एट 180 और -5 एट 90। -1 क्या ठीक है? सर हम लोग पावर क्रॉस में जहाँ ऐड कर रहा होता है वहाँ लगा सकते हैं। हाँ, उसके एक्सिस पे लगाते हैं ना, नहीं, जहाँ पे उसको लगाते हैं, जहाँ एक्ट कर रहा होता है वहां लिखते हैं। ठीक है, -4 at 180. तो हम किसी को भी बना सकते हैं। तो वापस जा रहे हैं। तो अगर हमने -5 को स्फीयर बनाया तो ये b माइनस ए, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? -1 में से, तो ये +4। शाबाश, दैट्स इंपॉर्टेंट। 90. और जहां -5 लगा हुआ है वहां लगाना है। तो +4 at 90 होगा। सर ये +4 at बेटे 180 होगा ना। फेयर फेयर की जिस स्फीयर किसको बनाया आपने? तो -5 को तो तो जहां -5 लगा हुआ है वही एक्सिस है एक्सिस ऑफ नेट। तो -5 तो 90 नहीं है। नहीं बेटा, ये है ना, ये -1 का 90 है, -5 का 180 है। और फिर मैं ऊपर देख रहा था रोटेशन और प्रेजेंटेशन क्रॉस पे आओ ना, क्रॉस डिफरेंट है ना। ये 3-4 इसमें डाल दिए ना, ये हम यूज नहीं करते। एरर लेंथ हम नहीं लिखते,
हम तो एक्चुअल पावर लिखते हैं सिलेंडर्स की और उससे आगे चलते हैं, वही क्वेश्चन आएगा। इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं आएगा जिसमें एरर लेंस लिखा होगा। वो समझने के लिए है कि रिफ्रैक्टिव एरर असल में आई की जो ओवर प्लस या ओवर माइनस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, वो रिफ्रैक्टिव एरर है। कि जब आप -5 लगा रहे हैं रिफ्रैक्टिव एरर, तो असल में आई के पास +5 ज्यादा है, वो +5 एरर लेंस है। और जब आप करेक्ट करने के लिए +5 लगा रहे हैं तो उतनी पावर आई के पास असल में कम है, इसलिए आप उसको एडिशनल पावर दे रहे हैं। ये एरर लेंस का कॉन्सेप्ट है, उसकी जरूरत नहीं है हमें, वो सवाल नहीं आते। कितना रह गया काफी, तो वो डिसकंटिन्यू हुई है। यहाँ से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। कोशिश करें एक दूसरे से डिस्कस करके एक सिंपल, अगर आपको नहीं ऑप्टिक्स की ज्यादा समझ आती तो कोई नहीं, सिंपल फार्मूलाज यूज करें, B-A वो इनको बता दें। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जिसको स्फीयर बनाया है एक्सेस ਉਹਦੇ ਤੇ लाना है और उन्होंने माइनस करना है दूसरे च। तो इस तरह आप ऑप्टिक्स की डिटेल में जाए बगैर भी इसको याद कर सकते हैं। ऑप्टिक्स को याद करना वही जरूरी है जहां वो आपसे पूछी जाती है। एरर लेंथ का कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, एरर लेंथ से निकालना, दिस इज बेटर इफ समबडी इज लिटिल मोर कंसर्न्ड एंड मोर इंट्रीगिंग है, उसकी फिजिक्स अच्छी है, मैथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस तरह से याद कर ले। तो अब्दुल्ला का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। दूसरा अभी वो स्लेट भी नहीं है ना, तो उस पे स्टीफन साहब को कॉन्सेप्ट मदनी साहब लिख रहे हैं, इसलिए प्रोबेबली फर्क पड़ रहा है। तो लेकिन देयर आर सो मेनी वेज, हमें सही जगह बस नताइज सही होने चाहिए, आंसर सही होने चाहिए और पेशेंट को फायदा पहुंचना चाहिए हमारे स्केल से, मकसूद तो ये है। तो जिस तरह चाहें आप याद कर लें, इसलिए ये मल्टीपल तरीकों से हम एक ही चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उसका पीछे कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए और जो उसके झटके मेथड जिसको कहते हैं निमोनिक्स हैं वो भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। थैंक यू।